जी हाँ, हाल ही में वेब सीरीज ऑफ डैमेज का लॉन्च हुआ, जहां पर अमृता खानवालकर नजर आए और साथ ही अमित सियाल भी। अब इन लोगों ने कैसे नजर आए हैं और क्या बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। अ, थोड़े बहुत बोल्ड सीन्स भी हैं आपके। देयर इज कहीं हेजिटेशन था कि पहली वेब सीरीज है और बोल्ड सीन्स हैं, ऑडियंस कैसे एक्सेप्ट करेगी, क्या सोचेगी? देखिए, ये मेरा वेब सीरीज़ में अगर डेब्यू है, बट मेरा डेब्यू तो हो चुका, मतलब जैसा कि काफ़ी सारी मैं फ़िल्मों में काम कर चुकी हूँ, मराठी फ़िल्मों में मैं काम करती हूँ। जैसा मैंने अभी भी कहा था कि मेरे लिए वो किरदार बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब मैं ये सोचती बैठूँ कि अरे ये तो मेरा डेब्यू है और फिर लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर वो कैरेक्टर करने का मुझे मज़ा नहीं आता। कहीं ना कहीं यस, जैसा आपने कहा कि बोल्ड सीन्स है, देर आर अ लॉट ऑफ सीन्स वेयर यू नो काइंड ऑफ हेल्प मी गेट रिड ऑफ माई इनहिबिशंस। मैंने आज तक ऐसा कभी किया नहीं है, बट आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ चैलेंजिंग, यू नो। और वेब ये एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे एक एक्टर को, एक डायरेक्टर को, एक प्रोड्यूसर को बहुत सी फ्रीडम मिलती है अपनी स्टोरी टेलिंग में, अपनी डायरेक्शन में और अपने परफॉर्मेंसेस में। कहीं ना कहीं मुझे वो जो चैलेंज था कि ओके, नाउ दिस इज़ द एंटायर कैरेक्टर, यू नो, और इसकी अगर जर्नी है, अगर if she is going to be a killer, if she is going to be a woman who is going to be killing a lot of men, तो वो कहता है ना कि उसको पकड़ के वो सारी चीज़ें आती है, वो सेंशुअसनेस आती है, या फिर वो सेंशुअलिटी आती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी कैरेक्टर को। इफ़ दैट कैरेक्टर इज़ नॉट सेंशुअल, इट्स नॉट अट्रैक्टिव, देन देयर इज़ नो पॉइंट ना कि इतने सारे लड़के क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों उनकी जाने जा रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन था। एंड जैसा कि मैंने कहा कि देयर वर अ लॉट ऑफ टाइम्स वेयर आई पुट माई फुट डाउन एंड आरंभ एंड एकांत हैव सपोर्टेड माई डिसीजन, और वो आपको वेब सीरीज देख के पता लगेगा। Because I always feel that a protagonist who is exposed in the first episode, उसका किरदार अगर आपको एंड तक देखना है तो एक मिस्ट्री, एक सेंशुअलिटी होना बहुत ज़रूरी है, और वो मिस्ट्री आपको पता लगेगी जब आप इस किरदार को फॉलो करोगे। थैंक यू। Aram, actually, we've seen Thor with the hammer, and then we saw her with the hammer. And I just got to know that there is this inside joke about her roaming around with the hammer on sets. What is that? I don't think so. We were supposed to tell this, but since you have asked, so you see the shot that is Yeah, happening. the first scene. Okay. So you know there is something called as method acting. Okay, where actors want to get into the character to play it beautifully and real. So she went a notch above. Okay. So while we just wanted, it was a camera and she was supposed to give it, but you know she still wanted to see the killer there. Okay. So we placed the guy who was supposed to play. He's anyways a dead body, just almost dying. And then she's like, no, I just want to have the feel and I will do it. Don't worry, I'll not hit anybody and all that. And the actor also believed, okay, poor guy, he was like totally new. He said, hey, fine, no problem, I'll be there. You know, as if there was no even line exchange that she needs a counterpart to give the lines. Nothing. He's just almost dying and she hits the final nail. And then we said action and she's like totally, yeah, I'm in the mood. And she literally hit the guy. My God, where is he? Is he all right now? He's still alive. So I think only Amrita has seen that expression. Yeah. Because we were behind the camera, so she can tell you that expression. that expression. But I'm extremely sorry. That was my first day of the shoot. And जैसा इन्होंने कहा मेथड एक्टिंग, अब मुझे लगा वो जो हथौड़ा था वो थोड़ा उसमें वजन नहीं है। नहीं, वो लकड़ी का था, and I hit the poor guy. And then I was like, ये बहुत realistic हो रहा है, अमृता. You need to come out of it. Going a notch higher with method acting, you're eating your breakfast with the hathoda, sleeping with the hathoda, No, doing but she was totally in the character. Many a times I had to say that Amrita, मैंने cut बोल दिया है. Now get out of it. Otherwise she's roaming around with that grumpy face and as if looking at everybody as she's the next victim. All the assistants, cameramen, everybody was worried that she would do something, you know. So I had to keep saying cut, now cut, it's done, Amrita, it's over, and then she used to come out of the character. I'm so sorry to interrupt. Are there any more questions from media? Yes. Hi, Abrita. I have a question for you. I heard that you have smoked for the series, and you are not a smoker. No. So how difficult was it for you to? See, he's laughing. But yeah, it was very, very difficult. Acha, now the thing is, Aram did not know that I don't smoke. वैसे smoking is very bad. Please don't do it. Yes. Okay, and so there was this one scene where I had to smoke. Now the thing is कि वो inhale करना होता है. अब पकड़ी ही पहली बार है भाई, वो inhale क्या और exhale क्या.
So he just kept saying that inhale the cigarette. And I'm like, are you mad? It is hurting my throat. And for 2 weeks, I think मैंने कुछ 40 cigarettes या कुछ उस दिन जलाई थी, and I just couldn't do it. And I was, for 2 weeks, I think my throat had gone, my voice had gone. But yeah, I mean, when you get a director like that, then you have to do certain things. क्या करे, actor बेचारे. Has the character rubbed off on you? Like I said initially also, my mom and my sister said that ये बहुत naturally तुमको आया होगा because थोड़ी बहुत psychotic तुम हो. Now they say this with a tinge of joke, I hope so. But no, it has not rubbed off me because कहीं ना कहीं after the shoot got over, hangover था थोड़ा बहुत, कि because it is a very dark character. Again, what happens is, when you have to really kill somebody and when you have to act as if you're killing somebody, वो conviction भी तो उतना चाहिए. Because otherwise ना वो लगता है अरे क्या कर रही है यार, कैसे लग रहा है ये, बड़ा artificial सा लग रहा है, ये हो सकता है. So I have killed in so many different ways, with a rubber band, with a okay, sorry, अभी नहीं, okay, sorry, I'm so sorry. But मतलब काफ़ी अलग किस्म से मैंने लोगों को मारा है इसमें, and that you will see. So for it to be convincing, I had to go a little, one step ahead. I had to kind of tell myself that अगर ऐसा really हो जाए तो फिर कैसा हो सकता है. And to tell you very frankly, to come out of the character, I took about a week or so. My friends kind of took me out, because I had become grumpy by the end of the shoot. I had become very नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, and I spent a lot of time alone. So नहीं ये ऐसा कुछ नहीं किया मैंने. But I did spend a lot of time alone after that, and then because coming back to reality was really something, because I think 30 days or something, 20 to 30 days, you're shooting in just, in one character, you're experiencing hell lot of things. तो फिर उससे बाहर निकलने में मेरे को थोड़ा सा time लगा. Just to add on, the point is, like, as a director, every actor will think that you have all the answers, and you keep talking about the characters to them just before the shot and all that. So, there are days when director also gets exhausted. And then if Amruta walks in, how do you want me to do it? I used to look at her and say, just be yourself. And that's about it. जी सच्ची बात बताओ तो ये कितनी अच्छी बात है कि इतना काम करने के बावजूद, या फिर मराठी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में काम करने के बावजूद आप कहीं तो डेब्यू कर सकते हो. आई थिंक इट्स लवली, द थॉट इज़ वेरी लवली. एंड हंगामा प्ले इज़ गोइंग टू बी लॉन्च्ड विद दिस वेब सीरीज़. और मुझे ऐसे लगता है कि डैमेज्ड, एक तो वेब सीरीज़ की जो स्पेस थी वो मुझे हमेशा ही बहुत अट्रैक्टिव लगी थी, और कभी ना कभी तो दिमाग में था कि यहाँ इस स्पेस में कुछ करना है. बट व्हेन यू गेट अ कैरेक्टर लाइक लवीना इन डैमेज्ड, आई थिंक सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है. इट्स द प्रोटैगनिस्ट, इट्स अ फीमेल साइको किलर रोल. तो मतलब वो कहते हैं ना कि कभी कभी जो चीज़ें हैं वो द राइट थिंग्स फॉल इन द राइट प्लेस, ऐसा कुछ हुआ है. एंड जैसा कि अभी आपने देखा, द ट्रेलर काइंड ऑफ गिव्स अवे हु द किलर इज़, एंड व्हाई शी इज़ किलिंग एंड स्टफ लाइक दैट. उस किरदार को कुछ एपिसोड्स तक लेकर जाना और उस किरदार को मेंटेन करना, आई थिंक बहुत चैलेंजिंग था. मैंने इस वेब सीरीज़ में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें की है जो मैंने आज तक नहीं की है. I got rid of a lot of my inhibitions, and there are a lot of bold scenes that you can see. So I'm very kicked about it. Yeah, मुझे ऐसे लगता है कि वो कहता है ना कि बहुत अच्छे से फ्रेम करके आपको कुछ दिया जाता है प्लेटर में, और वो all you have to do is just eat the platter. That's about it. लवीना की बात करिए तो लवीना प्ले करना कितना मुश्किल और टफ था आपके लिए? क्या frankly, लवीना और मैं कहीं ना we are not similar in any way. मतलब yes, I do have this perception that every person has a dark side, but Lavina takes that dark side to another level. She kills for a reason, and what that reason is, that you will get to know in Damaged. But for me to play Lavina kahin na kahin was very, very difficult. क्या हो जाता है कि when you say that you're a psycho killer, वो कहीं ना कहीं ओवर द बोर्ड जाने की बहुत वो कहते हैं ना कि बहुत गुंजाइश होती है कि थोड़ा सा ओवर हो सकता है या फिर थोड़ी सी ओवर एक्टिंग हो सकती है. सो टू कीप हर इन दोज रिस्ट्रिक्शंस एंड येट टू एक्सप्लोर अ डार्क साइड ऑफ अ फीमेल हु हैज़ बीन डैमेज्ड एंड हु हैज़ been looking for love, I think was very, very challenging.
पर उसके लिए एकांत मेरे प्रोड्यूसर एंड आरंभ मेरे जो डायरेक्टर हैं उनका काफ़ी सपोर्ट रहा. सो आई वाज वेरी वेरी ग्लैड. थैंक यू. ऑन लोकेशन पहले ही दिन डैमेज सीक्वेंस हो गया था मुझे लगता है. आई वाज सपोज टू ऐसे कैमरा लगा हुआ था एंड आई वाज जस्ट सपोज टू एक्ट टू किल द पर्सन बिहाइंड द वॉल और मेरे हाथ में हैमर था. और जैसे कि अभी आरम ने बताया मेथड एक्टिंग करते करते अमृता ने वो हथौड़ा मार दिया उसके नाक पे एंड आई जस्ट फेल्ट एक्सट्रीमली बैड बिकॉज मेरा पहला दिन शूट का था एंड आई जस्ट टुक द कैरेक्टर सो सीरियसली कि मैंने किसी को मार दिया. बट दैट वाज द ओनली इंसिडेंट, दैट वाज द ओनली डैमेज दैट काइंड ऑफ हैपेंड एक एक्सीडेंट के रूप में. बट या उसके बाद कोई एक्सीडेंट्स नहीं हुए डेफिनेटली. थैंक यू. थैंक यू. Yes. We are very very thrilled and we are very surprised and we are very happy कि Razi has been doing so well and is doing so well. और 100 CR का जो एक कहता है ना क्लब है उसमें राजी यस वो बेंचमार्क पार कर चुकी है. और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी फिल्म जहाँ पे पेट्रियाटिज़म बहुत चीख चीख के नहीं बोला गया है और बहुत ही अलग तरीके से ये जो फिल्म है ये लोगों के सामने आई और लोगों ने इसे सराहा है और उन्हें अच्छी लगी है. एंड फॉर मी आई थिंक इट हैज़ बीन अ ग्रेट ईयर एंड राजी रिलीज़ हुई है, डैमेज इज़ बीइंग रिलीज्ड एंड बहुत अलग किरदारों में मैं अपने ऑडियंसेस के सामने आई हूँ. जैसे राजी की मुनीरा को लोगों ने पसंद किया, आई होप कि वो लवीना को भी पसंद करेंगे. जी जी यार मैं ना वैसे भी फिल्मों के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हूँ. मतलब मैंने अभी वीरे दी वेडिंग नहीं देखी है लेकिन आई वांट टू गो एंड वॉच इट. सो एक तो संजू का ट्रेलर इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब अलग ही लेवल पर है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच. मैं आई एम अ फिल्म बफ या सो आई हैव टू वॉच ईच एंड एवरी फिल्म. तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपको ये देखनी है ये देखनी है मैं तो सारी देखती हूँ. सॉरी सलमान की बड़ी फैन है यार. मैं दोनों की बड़ी फ़ैन हूँ. मतलब सलमान खान इज़ सलमान खान एंड रणबीर इज़ रणबीर एट द एंड ऑफ द डे. सो मैं दोनों की बड़ी फ़ैन. तो किसकी मतलब फैमिली से क्या रिएक्शन था आपका जब डैमेज का लोग ने ट्रेलर देखा ये देखा तो? वेल लाइक आई टोल्ड यू कि माय मॉम एंड माय सिस्टर थॉट अरे ये तो बड़ी नेचुरली तुमको आ गया होगा क्योंकि थोड़ी बहुत तो साइको हो ही तुम. बट माय मॉम वाज वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज शी इज़ नेवर सीन मी इन सच अ लाइट. माय हस्बैंड वाज वेरी हैप्पी. इनफैक्ट डैमेज करो ये कहीं ना कहीं उनका डिसीजन था कि इट्स अ ग्रेट कैरेक्टर एंड यू विल गेट टू पोर्ट्रे अ लॉट ऑफ योर टैलेंट, अ लॉट ऑफ योर एक्टिंग प्रोवेस एज वी से इन द कैरेक्टर. सो आई थिंक कहीं ना कहीं उनका जो डिसीजन है वो काफ़ी लोगों को अच्छा लग रहा है. द ट्रेलर इज़ कम आउट, अ लॉट ऑफ एपिसोड्स हैव कम आउट एंड आई रियली होप दैट ये लोगों को पसंद आए. दैट्स इट. थैंक यू सो मच.